وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا، گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ کبھی وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ ایک سرد ہوا کے سپرد کرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں داخل ہوا جہاں صرف تنہائی تھی۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا وہ بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک خوبصورت اور پاکیزہ عکس نظر آیا۔ چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر چکا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر آنکھوں کے سامنے تھی۔ کہاں ہو یار تم؟ ایک دفعہ معاف کر دو مجھے۔ میں نے گناہ کیا ہے یہ سوچ کر کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، یہ اذیت ختم کر دو۔ میری تھک چکا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے اور ایک رات اس کی اذیت اور تنہائی میں گزرنی تھی۔ مما کہاں ہیں آپ؟ وہ کچن میں داخل ہوتی ہوئی بولی، جہاں مریم بیگم ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ویسے تو اس گھر میں کافی نوکر موجود تھے مگر کھانا اور ناشتہ مریم بیگم اپنے ہاتھوں سے ہی بناتی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ مما وہ دونوں بدتمیز کہاں ہیں؟ کیا ہوا نور؟ صبح صبح اتنا غصہ کیوں؟ چندہ وہ ناشتہ بناتی مصروف انداز میں بولی۔ مما ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھے، وہ ان کا چہرہ اپنی طرف موڑتی بولی۔ جیسے ہی مریم بیگم نے نور کی طرف دیکھا تو بے ساختہ ان کی ہنسی نکل گئی۔ کیوں کہ اس کے منہ پر کمال کی پینٹنگ کی گئی تھی جس دیکھ کر ان کی ہنسی نہیں روک رہی تھی۔ نہیں لے آپ بھی جائیں، میں نہیں بولتی۔ وہ منہ پھلا کر وہیں ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کیا اچھا میری جان، ہم ابھی ان دونوں بدتمیزوں کی کلاس لیتے ہیں۔ ہم آپ کی ناراضی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ جائیں منہ دھو کر آئیں۔ وہ اس کو بیچتی رضوانہ کو ناشتہ لگانے کا کہتی ان دونوں کو دیکھنے چلے گئی۔ وہ جب باہر آئی تو وہ دونوں لان میں پانی سے کھیل رہے تھے۔ یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ مریم بیگم کی آواز پر نمرہ پائپ پھینکتی ان کی طرف آئی جبکہ حیدر وہیں کھڑا اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ وہ مما پہلے اس نے مجھ پر پانی پھینکا تھا، میں تو لان میں پودے دیکھنے آئی تھی۔ وہ معصوم شکل بناتی بولی۔ مما یہ جھوٹ بول رہی۔ حیدر جلدی سے اپنی دفاع کے لیے آگے آیا جبکہ مریم بیگم کی گوری دونوں کو چپ کرا گئی تھی جو پھر سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ دونوں کب بڑے ہوں گے؟ 20 کے ہو گئی ہو دونوں، لیکن عقل ابھی تک نہیں آئی۔ اور یہ صبح صبح نور کے ساتھ کیا حرکت کی آپ نے؟ بڑی بہن ہے وہ آپ کی، اور کچھ شرم ہے دونوں میں؟ وہ اپنے گھر جانے والی ہیں، کیوں تنگ کرتے ہیں آپ نور کو؟ وہ سوری مما مگر آپ ہی سوتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہیں اور ان کی نیند اتنی گہری ہے کہ کچھ بھی کر لو انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ حیدر نے ایک بار پھر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا بنا مریم بیگم کی طرف دیکھے۔ جب اس کی نظر ان کے چہرے کی طرف گئی تو اس کی زبان کو بریک لگی جبکہ نمرہ اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ اوکے مما سوری، ہم آئندہ آپ ہی کو تنگ نہیں کریں گے، وہ دونوں کان پکڑتے ہوئے بولے۔ اس طرح کرنے پر مریم بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلیں آپ دونوں اندر اور جا کر کپڑے چینج کریں اور اپنی اپی سے سوری کریں اور ناشتہ کی ٹیبل پر آئیں۔ ابھی وہ ان کو کچھ اور کہتی جب رضوانہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بی بی جی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، یہاں باپ کا یہ حال ہے تو بچے تو پھر اللہ حافظ۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی اندر داخل ہوئی۔ اب ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ ذہن نصیب، شکر ہے آپ کو وقت ملا ہمارے لیے۔ ابھی وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو عباس صاحب کی آواز کانوں میں پڑی جو شیشے کے سامنے کھڑے پرفیوم اسپرے کر رہے تھے۔ جناب کبھی ہمارے بنا بھی تیار ہو جایا کریں۔ وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرتی بولی۔ اب ہم کیا کریں؟ 25 سال سے آپ نے ہی ہماری عادتیں خراب کی ہیں۔
वो टाई उनके हाथ में पकड़ाते हुए बोले। वक़्त के साथ आदतें बदल लेनी चाहिए, वो टाई बाँधती हुई बोली। ये आदत तो मरने के बाद ही छूटेगी। आपको कितनी दफ़ा कहा है कि फ़िज़ूल बातें ना किया करें। वो इनके कंधे पर मुक्का मारती बोली, हाय आपकी इन्हीं अदाओं के हम दीवाने हैं। ऐसे-वैसे वो इनको कोड पहनाती बोली, अच्छा अब बाकी रोमांस बाद में और कुछ अपनी उम्र का ही सोचा करें। बच्चे बड़े हो गए हैं, वो इनको घड़ी पकड़ाती हुई बोली। बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं, वो इनको मुस्कुरा कर देखते हुए बोले। अच्छा अब आ जाए, नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग मम्मा जानी, वो रुखसाना बेगम के गाल चूमता इनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग मेरी जान, आज खैरियत? हमारा बेटा इतनी जल्दी कैसे उठ गया? बस मम्मा, आँख खुल गई तो आ गया, वो जूस ग्लास में डालता हुआ बोला। पापा और बाई कहाँ हैं? वो जूस का सिप लेता हुआ बोला। जॉगिंग पर गए हैं, आते होंगे, वो टेबल पर नाश्ते की लवाजमात रखती बोली। ये आज सूरज कहाँ से निकला है? जो अबान हसन शाह नाश्ते की टेबल पर मौजूद हैं। हसन शाह मीर के साथ अंदर दाखिल होते बोले। इनकी बात पर अबान भी हंस दिया। वो दोनों फ्रेश होकर आए। हसन शाह सरबराही कुर्सी पर बैठे, जबकि बाएं तरफ रुखसाना बेगम और दाएं तरफ उनके दोनों बेटे, जो इनका गरूर थे, वो बैठे थे। जी तो बेटा जी, पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई है, आप आगे क्या करना है? हसन शाह ने आमलेट अपनी प्लेट में रखते अबान से पूछा। पापा अब ये बिजनेस तो मुझसे होगा नहीं, इसलिए सोचा आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूं। क्या तो तुम ठीक रहे हो। क्यों मीर, तुम क्या कहते हो? जी पापा, जो अबान की मर्जी है, वैसे भी बिजनेस संभालने के लिए मैं हूं ना। चलो फिर आज तैयार रहना हमारे साथ जाने के लिए। ओके ठीक है पापा। हसन शाह मोबाइल पर मसरूफ़ हो गए। हसन की जान, ये ज़रा स्लाइस पकड़ाइएगा। अब्बान ने एक आंख दबाते रुखसाना बेगम से कहा। रुखसाना बेगम ने आंखें दिखाते उसे स्लाइस पकड़ाए और हसन शाह मोबाइल साइड पर रखते अपने शरारती बेटे को गुस्से से देखने लगे। मीर ने अपनी हंसी छुपाते जूस का गिलास लबों से लगाया, क्योंकि अक्सर हसन शाह यही कहते थे जब घर में वो दोनों अकेले हों, मगर पता नहीं इनके सपूत ने कहाँ से सुन लिया था। तब से वो अक्सर इनको चिढ़ाने के लिए रुखसाना बेगम को यही कहता था। ओके मम्मा, मैं तैयार होने जाता हूँ। अबान अपनी बेइज्जती से बचने के लिए जल्दी नाश्ता खत्म करता उठा। पता नहीं कब बड़ा होगा ये हसन शाह, मुस्कुरा कर बोले। बस अभी घर में कोई छोटा नहीं ना है। जिस दिन मुझसे छोटा आएगा तो उस दिन अबान बड़ा हो जाएगा। वो जाते जाते मुड़ा और शरारती नज़रों से मीर को देखने लगा। रुखसाना बेगम इसका इशारा समझ गई और मुस्कुरा दी। हसन, मैंने आप ही से बात की है, नूर की पढ़ाई अब मुकम्मल हो गई है। निकाह तो इनका बचपन में हो गया था, मगर मैं सोच रही हूँ एक दफ़ा फिर से निकाह की रस्म अदा हो जाए। वो हसन और मीर को देखती बोली। कह तो आप ठीक रही हैं, मैं अब्बास भाई से बात करता हूँ। तो नूर, अब्बास बहुत जल्द तुम मेरी दस्तरस में आने वाली हो। वो सोचता मुस्कुरा दिया। भाई इतना ना खुश हो, बाद में रोना पड़ेगा। अबान मीर के कान में सरगोशी करता बोला। बेटा जी, मुझे लगता है आज आपका मार खाने का इरादा है। मीर भी उसके कान पकड़ता बोला। इस तरह हंसी मजाक में नाश्ता किया गया। हूर बेटा, आप किचन में क्या कर रही हैं? जमशेद लुगारी ने नूरा से हूर का पूछा तो उसने बताया कि छोटी बेबी किचन में है, तो वो वहीं आ गए। कुछ नहीं पापा, बस आज यूनिवर्सिटी से ऑफ था तो सोचा अपने प्यारे पापा के लिए नाश्ता बना दूं। हम तो फिर हमारी डॉल क्या बना रही हैं? आज मौसम अच्छा था इसलिए आलू के पराठे आपको बहुत पसंद है ना? वो मुस्कुरा कर बोली। पसंद तो हैं, पर आपको किसने बताया? पुप्पो ने बताया था, वो पराठे की साइड चेंज करती बोली। अच्छा आप बैठे, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। हूर ने नूरा के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगाया
और अपनी जगह पर बैठ गई। तो पापा बताएं कैसे बने? वो जमशेद साहब को नवाला मुंह में डालते देखकर बोली। आपकी मम्मा के बाद मैंने पहली दफ़ा आलू के पराठे खाए हैं और हमारी बेटी ने बहुत अच्छे बनाए हैं। अभी वो एक और निवाला डालते जब उनको अंदर दाखिल होता लड़खड़ाता हुआ ज़ेब दिखाई दिया। वहीं रुक जाओ, वो जो मुश्किल से अपने कदम ज़मीन पर रख पा रहा था। बाप की आवाज़ पर रुक गया और सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगा। कहाँ से आ रहे हो? ये कोई होटल है? जब तुम्हारा दिल किया तुम घर आ जाओ, वो गुस्से से बोलते इसके करीब पहुंचे। औरंगजेब लुगारी के 3 बच्चे थे, बड़ा जमशेद लुगारी, फिर रुखसाना लुगारी और फिर मरियम लुगारी। औरंगजेब लुगारी और उनकी बीवी कार हादसा में इंतकाल कर गई थी। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद जमशेद लुगारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने अपनी बहनों का ख्याल रखा, उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया। फिर भी घर में कोई बड़ा ना होने की वजह से उनको हमेशा अपनी बहनों की फिक्र रहती थी। ऑफिस से जब वो घर आते तो अक्सर थके होते, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारते। इसी दौरान उनकी मुलाकात फातिमा से हुई थी। अपने जीवन साथी के रूप में वो इनको बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने शादी का फैसला किया, जो एक किस्म से अच्छा फैसला था। फातिमा ना सिर्फ अच्छी जीवन साथी साबित हुई, बल्कि वो एक अच्छी भाभी भी थी। उन्होंने अपनी बहनों की शादी अच्छे खानदानों में की और अच्छे तरीके से अपनी बहनों की जिम्मेदारी अदा की। ये मुझसे आप पूछेंगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? जहाँ से भी आऊँ, ये मेरा घर है, ज़ेब लुगारी का। वो कभी अपने साथ अपने बाप का नाम नहीं लगता था। आप बताइए, आप कैसे रास्ता भूल गए हैं? वो बाप की आंखों में आंखें डालकर बोला। भाई प्लीज़, पापा अभी कल ही आए हैं। और ज़ेब का गुस्सा देखकर इसके करीब पहुंची। तो जमशेद लुगारी साहब, आपको हमारी याद आ गई कि पाकिस्तान में आपके 2 बच्चे मौजूद हैं? ज़बरदस्त, वो ज़ख्मी सा मुस्कुरा कर बोला। होर से भी भाई की आंखों का दर्द छुपा न रहा। जमशेद साहब तो चुप खड़े बेटे के मुंह अपने लिए जहर सुन रहे थे, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से भरा था अपने बच्चों के दिल में। 12 साल जानते हैं कितना अरसा होता है जमशेद साहब? इन सालों में आप हमसे दूर रहे हैं। जब हमें डर लगता था तो हम भी कोई शफकत बड़ा लम्स तलाश करते थे, मगर आप नहीं आया। तब सिर्फ फुफ्फो थी हमारे पास, बाप नहीं था। याद है वो रात जब आप हमें फुफ्फो के पास छोड़कर आए थे? कितना रोया था मैं, मगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा। आपने अपनी बीवी खोई थी तो हमने भी अपनी माँ को खोया था। इसकी आंखें गुजरे वक़्त को याद करके एक बार फिर भीगने लगी, मगर वो रोना नहीं चाहता था अपने बाप के सामने, इसलिए मुंह मोड़कर अपने आंसू साफ किए। जमशेद साहब भी रो दिया। कितना दुख था। उन्होंने अपने बच्चों को, इनकी बीवी अगर मरी थी तो वो भी माँ थी इनकी। कैसे मैं अपने बच्चों से बदला ले सकता हूँ? क्यों मैं इतने साल दूर रहा अपने बच्चों से? इनका ज़मीर मलामत कर रहा था। और मेरे कमरे में मेरी कॉफ़ी ले आना, अगर इनसे फारिग हो जाओगी। वो सर्द आवाज़ में कहता जमशेद साहब के साकत वजूद पर एक निगाह डालता, सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। कल ही इसको हैदर ने बताया था नूर के निकाह के बारे। गुस्सा से वो ऑफिस में सारे स्टाफ की शामत ला रहा था। छुट्टी के बाद भी वो सारी रात अपने ऑफिस रूम में बैठा रहा और सिगरेट पीता रहा। वो इश्क करता था नूर से, बेपनाह इश्क। इसके बगैर तो वो जिंदा नहीं रह सकता था। इसकी मुस्कुराहट, उसकी छोटी छोटी शरारतें, हर चीज़ से प्यार था। उसे नीली आंखों वाली वो खूबसूरत लड़की जान थी ज़ेब लुगारी की। वो कैसे किसी और की हो सकती है? सारी रात वो इसके बारे में सोचता रहा और जब सुबह घर पहुंचा तो गार्ड ने इसको जमशेद साहब की आमद का बताया। अंदर दाखिल होते उनका वो लहजा हक जताना आग लगा गया उसे। वो और तलख कलामी कर गया उनसे। अब वो अपने कमरे में मौजूद हर चीज़ पर अपना गुस्सा निकाल रहा था।
शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में गिरे पड़े थे। कीमती परफ्यूम अपनी बेकदरी का मुंह बोलता सबूत थे। ये मैं होने नहीं दे सकता, नूर सिर्फ ज़ेब की है। मैं फिर से अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। वो जुनूनी अंदाज़ में कमरे में चक्कर लगा रहा था। छीन लूँगा मैं तुमको मीर से, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो वही शीशे के टूटे टुकड़ों के करीब बैठ गया। अपनी शर्ट के बटन खोलकर वो शीशे से उसका नाम अपने सीने पर लिखने लगा। इस वक़्त वो सिर्फ एक जुनूनी इंसान लग रहा था, जिसे ऐसा करने से सुकून मिल रहा था। इस तरह तुमको भी मैं एक दिन अपने करीब कर लूँगा, हमेशा के लिए। वो उठकर बेड पर दराज़ हो गया। आँखें बंद करते वो खूबसूरत आँखें नज़र आईं, वो मुस्कुरा दिया। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी। वो मुँह में बड़बड़ाता नींद की वादी में खो गया। आप ही मेरी जान मान जाए ना। वो पिछले आधे घंटे से नूर को मनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो मुंह बसोड़कर इनसे साफ नाराज़गी ज़ाहिर कर रही थी। अच्छा आप ही सॉरी ना, अब हम कभी आपके साथ कोई शरारत नहीं करेंगे। प्रॉमिस, पिछली बार भी यही कहा था। तुम दोनों ने वो दोनों को घूरती हुई बोली। अच्छा अपी, अब के वाला प्रॉमिस, कभी कोई शरारत नहीं करेंगे। बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। प्लीज़ 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 आपी। हैदर इसका हाथ पकड़ के बोला। ओके ठीक है, मगर अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम दोनों को। ओके ओके ठीक है आपी। वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह सर हाँ में हिलाते बोले। आपी मैंने सुना है कि आज फूफो और मीर भाई आ रहे हैं। निम्रा की जुबान पर खुजली हुई। नूर का चेहरा मिनटों में सुर्ख अनार हुआ। दोनों को पता था कि उनका निकाह बचपन में ही हो गया था, मगर कभी भी मीर ने अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की, और यही बात नूर को सबसे ज्यादा पसंद थी। वो पागल नीली आंखों वाली शहजादी दीवानी थी मीर हसन की। इश्क में वो अपने आप को बहुत खुशनसीब तस्वर करती थी, जिसके इश्क को खुदा ने बिना किसी रुकावट के उसकी झोली में डाल दिया था। मगर दूर कहीं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये पाकीज़ा नूर किसकी ज़िंदगी में फैलना था, ये तो बस किस्मत जानती थी। इस कांच की लड़की की किस्मत में शायद टूटना लिखा हुआ था। ओहो, अभी से भाई के ख्यालों में खो गई आप। निम्रा इसके सामने चुटकी बजाकर बोली। नहीं नहीं, वो तो बुखला कर बोली। अच्छा अब तुम दोनों जाओ, मुझे ज़रूरी काम है। आज वो बहुत खुश था। उसका इश्क बस कुछ ही दिनों में मुकम्मल तौर पर उसका होने वाला था। वो जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपनी जान भी फना कर सकता था, आज वो ऑफिस से जल्दी आ गया था। वजह इसे अपने प्यार से मिलने की जल्दी थी। इस वक्त वो ब्लैक शलवार कमीज में खड़ा शीशे के सामने अपने सुनहरी बालों पर जेल लगाकर उनको सेट कर रहा था। चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट थी और उस दुश्मन जान को देखने की जल्दी थी। वो अपने आप पर परफ्यूम लगाकर कमरे से बाहर आया। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत वजूद और सबसे खूबसूरत उसकी सुनहरी आंखें, और इनमें मौजूद चमक जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। वो सीढ़ियां उतरता नीचे आया तो सबको अपना मुंतजिर पाया। रुखसाना बेगम तो दिल में बेटे की नज़र। ओए होए, छा गए भाई आप। अबान मीर के कंधे पर बाजू रखता बोला। मेरी तो चलो तैयारी बनती है, ये तू क्यों इतना तैयार हुआ है? वो पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ते बोला। जिसके लिए तैयार हुआ हूँ वो तो देखना भी गवारा नहीं करती। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ बोला। कुछ कहा तुमने? मीर गाड़ी में बैठते हुए अबान से पूछा। नहीं तो मैंने क्या कहना है भाई। सुबह जब हूर कॉफ़ी लेकर आई तो इसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर ज़ेब ने अंदर से कोई जवाब न दिया, तो वो चले गई। शायद वो सो गया। अब इनको फूफो के घर जाना था तो हूर जगाने आई थी। जमशेद साहब भी अपने कमरे में बंद थे। भाई, हूर ने एक दफ़ा फिर दस्तक दी। आ जाओ गुड़िया, ज़ेब शर्ट डालता बोला। जहम तो अब सूख चुका था, बस ज़रा सी अकड़ना थी। वो दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई।
मगर अंदर का मंदिर देखते ही वो परेशान हो गई, जहाँ हर तरफ कांच ही कांच थे। भाई ये क्या कमरे का हाल बनाया हुआ है? वो ज़ेब को घूरती हुई बोली। कुछ नहीं हुआ गुड़िया, बस गुस्सा आ गया था। वो सिगरेट निकालता हुआ बोला। वो गुस्से से घूरती नूरा को आवाज़ देने लगी। जी छोटी बीबी, नूरा तुम ये भाई का कमरा जल्दी से साफ करो, और भाई आप जल्दी से रेडी हो जाएं। क्यों, कहीं जाना है क्या? वो सोफे से उठकर बाहर बालकोनी में चला गया। हूर भी इसके पीछे गई। भाई पुप्पो की 2 दफा कॉल आ गई है। तो फिर क्या हुआ? वो दूर आसमान पर देखता बोला, जहाँ शाम की साई से लहरा रहे थे, बल्कि वैसे जैसे इसकी जिंदगी में अंधेरा फैल गया था। भाई आप भूल गए क्या? जब वो कुछ न बोला तो हूर ने उसके बाजू पर अपना हाथ रखा। भाई क्या कहा तुमने? भाई आपका ध्यान कहाँ है? तबीयत ठीक है आपकी? वो इसका माथा छूकर बोली। गुड़िया ऐसा क्यों होता है? जिससे मैं प्यार करता हूँ, अपना समझता हूँ, वो दूर क्यों चले जाते हैं? वो आसमान की तरफ देखता हुआ कह रहा था, पहले मम्मा छोड़कर चले गई, फिर पापा को भी हमारा ख्याल ना आया, और वो भी अपना गम बोलने हमें छोड़कर चले गए, और अब नूर भी मुझसे दूर जा रही है। कैसे रोकूं मैं उसे? कैसे शामिल करूं मैं अपनी जिंदगी में? वो हूर की तरफ देखता बोला। आंखें जब्त से सुर्ख हो गई। भाई संभाले खुद को, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। नूर कभी आपके नसीब में नहीं थी, वो तो बचपन में ही मीर बाई की हो गई थी। नहीं है वो मीर की, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ आई? वो जोर से दाड़ा, जिससे हूर डर कर पीछे हुई। सॉरी गुड़िया, मैं तुम्हें हर्ट कर दिया। जब ज़ेब को अपने लहजे का एहसास हुआ और हूर को आंसू बहाता देखा, तो अपने रवैये की माफ़ी मांगी। एक वही तो थी इसकी अपनी, उस जान जिसको इसने माँ बाप बनकर पाला था। रियली सॉरी गुड़िया, वो उसके आंसू पोंछता अपने कान पकड़कर बोला, जिससे वो मुस्कुरा दी। चलो तुम तैयार हो, फिर चलते हैं, और पापा को भी बता देना अगर अपनी बहनों से मिलना चाहते हैं तो आ जाए। ज़ेब ने ज़रा तल्खी से कहा। ओके जी, और हुक्म सर? वो थोड़ा झुककर बोली। कुछ नहीं, जाओ। वो उसके सर पर छत लगाता बोला। वो पिंक कलर की शलवार कमीज में मौजूद टेरेस पर खड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। हवा से उसके बालों की कुछ आवारा लटें इसके खूबसूरत चेहरे को छू रही थी। नीली आंखों में बेचैनी वाजिया थी। थोड़ी देर गुजरी, जब नूर को गाड़ी गेट से दाखिल होती नजर आई। गुलाबी लब मुस्कुरा दिए। वो गाड़ी से उतरता हुआ नजर आया। काले रंग की शलवार कमीज में हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। मोबाइल पर किसी से बात करते मगरूर सा शहजादा मीर को किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई, तो इसने ऊपर देखा, जहां वो खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुलाबी रंग के सूट में वो खुद भी एक गुलाब लग रही थी। नीली आंखें झुकी हुई थी, जो मीर के दिल को बेचैन कर रही थी। इसके देखने पर वो अंदर भाग गई। मीर इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। वो अंदर दाखिल हुआ, जहां रौनक लगी थी, मगर इसकी नज़र जिसको तलाश कर रही थी वो मौजूद न थी। अस्सलामु अलैकुम, इसने सबको मुश्तरक सलाम किया और जाकर सोफे पर बैठ गया। कैसा है हमारा शेर? मरियम बेगम ने मीर का माथा चूम कर बोली। बिल्कुल ठीक। खाला खालू कहाँ हैं? अबान ने पूछा। इनकी ज़रूरी मीटिंग थी, बस आते होंगे, मरियम बेगम ने जवाब दिया। ओके, कैसे हैं मीर भाई? हैदर उसके साथ सोफे पर बैठता हुआ बोला। मैं ठीक, तुम सुनाओ, कैसे चल रही है स्टडी? बस चल रही है। आपकी जो मिसेज है वो सुकून से रहने ही नहीं देती, हर वक्त हम मासूम बच्चों को डराती रहती है। इसकी बात पर मीर हंस दिया। थोड़ी देर बाद ज़ेब और हूर अंदर आते दिखाई दी। अस्सलामुअलैकुम पुप्पो, उसने पहले अदाब से रुखसाना बेगम के आगे सर झुकाया और प्यार लिया, फिर मरियम बेगम के आगे सर झुकाया और उनसे भी प्यार लिया। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी नहीं आ गए तुम ज़ेब? मरियम बेगम का अंदाज खफा खफा सा था। हाय फुप्पो, हम आपकी इसी अदा के तो दीवाने हैं। वो दिल पर हाथ रखता बोला, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
बदतमीज, जरा तुम्हें शर्म नहीं है? वो इसके कान खींचती हुई बोली, जिससे वो हंस दिया। आप दोनों तो मेरी प्यारी सी फूफो हैं। अच्छा, अब ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं। सॉरी फूफो, बस बिजी था और काम का प्रेशर भी बहुत था। और कैसे हो मीर तुम? वो उससे बगल गिरी हुआ। तुम सुनाओ? मैं भी ठीक, शुक्र है अल्लाह का। नूर अपी, आप यहाँ चुप कर बैठी हैं? बाहर कोई बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। नूर अपने ख्यालों में गुम मुस्कुरा रही थी जब निम्रा बोली, जिनकी तरह हाजिर हुई, मैं बस आ रही थी। तो चले फिर, कब से भाई आपका इंतजार कर रहे हैं? वो शरारत से बोली और नूर के ब्लश करने लगी और बाहर आकर रुखसाना बेगम के पास बैठ गई। माशाअल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। वो उसका माथा चूम इस केबल के सामने मीर बैठा आंखों में चाहत के दीप जलाई से इसे देख रहा था, जिसे देख कर नूर के गाल गुलाबी हो गए, जो ज़ेब की आंखों से भी छुपी ना रही। क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती नूर? कभी अपने इस दीवाना की तरफ भी देखो। हाथ में पकड़े गिलास पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। एकदम गिलास टूट गया और कांच के टुकड़े उसके हाथ को जख्मी कर गए। ज़ेब भाई, ये कैसे हुआ? आपका ध्यान कहाँ है? नूर इसके करीब पहुंचकर हाथ पकड़ के बोली, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगा। वो अपना हाथ खींच कर बोला, चुप, एकदम चुप। वो गुस्से से बोली, हैदर जाओ रूम से फास्ट एड बॉक्स लेकर आओ। नूर का इस तरह ज़ेब का हाथ पकड़ाना मीर को अच्छा नहीं लगा और वो उठ के चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबान ने टेरेस पर खड़ी निम्रा से कहा, जो अपने ख्यालों में गुम चांद को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसकी आवाज़ पर डर के एकदम पीछे देखा। क्या है तुम्हें मिस्टर बंदर? हर वक्त क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? वो बेचारा तो सदमे से उसे देख रहा था। ये बंदर किसको कहा तुमने? वो दांत पीसकर बोला, यहाँ तुम्हें कोई और नजर आ रहा है? वो जरा इसके करीब होकर मुस्कुराहट दबाकर बोली, अबान शाह, जिस पर यूनिवर्सिटी की हर लड़की मरती थी। काली गहरी आंखें और अच्छे से सेट किए ब्राउन बाल और मगरूर चाल, जो इसकी पर्सनैलिटी पर सूट भी करती थी। मगर वो किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अपने लिए बंदर का लफ्ज़ सुना उससे कुछ हजम न हुआ, इसलिए वो भी हिसाब बराबर करता बोला, अगर मैं बंदर हूँ तो तुम्हारी शक्ल भी चिड़ेलों से मिलती है। हैं? मेरी शक्ल कहाँ से चिड़ेलों से मिलती है? वो अपने चेहरे को छूकर बोली। मगर जब अबान को हंसी जब्त करते देखा तो वो गुस्से से इसकी तरफ लपकी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, देखा? मैं तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे सारे काम चिड़ेलों वाले हैं। वो उसे चढ़ा रहा था और काफी हद तक कामयाब भी हो गया। रुको तुम! वो इसके पीछे भाग रही थी। वो पूरे टेरेस में यहाँ से वहाँ जा रहा था। अबान चूहा! निम्रा जोर से बोली और वहाँ अबान को भी ब्रेक लगी। कहाँ है? वो वहीं खड़ा बोला, देखो निम्रा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो मेरी अच्छी सी प्यारी कज़न हो। तुम्हें पता है ना चूहे कितने गंदे होते हैं और मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। बताओ ना, कहाँ है चूहा? मगर निम्रा इसके पीछे खड़ी हंसी से पागल हो रही थी। अबान यार, तुम अभी भी चूहे से डरते हो? वो हंसी के दरमियान बोली, रुको तुम चूहिया, तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी। अबान को जब इसकी शरारत समझ में आई तो वो उसको पकड़ने के लिए भागा। जब तक वो सीढ़ियां उतरकर नीचे पागल, कैसे गुजरेगी तेरी जिंदगी? अबान अपनी सोच पर वो खुद ही हंस दिया। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, बस भाई की शादी होने दो, फिर मैं करता हूँ इंतजाम तुम्हें अपना बनाने का। प्रिंस, बस भी करो, इतनी भी चोट नहीं लगी जितनी तुमने पट्टी कर दी है। इसके कहने पर नूर ने एक बार घूर कर देखा और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। ज़ेब बेटा, ये क्या हरकत थी? देखे कितनी चोट लग गई। रुखसाना बेगम परेशानी से उसके पास बैठकर बोली, सॉरी फूफो, अचानक हो गया, पता नहीं चला। वो आहिस्ता से बोला, अब इन्हें क्या बताता? हाथ से ज्यादा तो दिल में दर्द हो रहा है। नूर हाथ की बैंडेज करके सबके लिए खाना लगाने चले गई थी। अच्छा मेरी जान, आज तुम यहीं रुक जाना,
کوئی خاص وجہ ہے پھوپھو؟ ہاں، تم سے ضروری بات کرنی ہے بھائی صاحب کی طرف سے، مگر میں اب اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ زیب بیٹا، وہ باپ ہے تمہارا اور میں بیٹا ہوں ان کا۔ وہ نظریں اٹھا کر بولا جیسے میں نے 12 سال انتظار کیا ہے باپ کے لمس کا، وہ بھی انتظار کرے میرے دل کے موم ہونے کا۔ آپ جانتی ہیں نا 2 مہینہ کی تھی حور جب ماما کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد پاپا ہم سے دور چلے گئے تھے۔ انہیں حور تک کا خیال نہ رہا کہ وہ کتنی چھوٹی ہے، بس اپنا غم بلانے چلے گئے۔ وہ غم سے اپنے اکلوتے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی جس کے نصیب میں خوشیاں بہت کم آتی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ایک بات کہوں میری جان بیٹا، انتظار اتنا لمبا نہ کروانا کہ بعد میں تم کو پچھتانا پڑے۔ جی، وہ بس اتنا بولا اور لون کی طرف چل دیا۔ یہ میر کہاں چلے گئے؟ وہ میڈ کو کھانا لگنے کا کہتی کب سے میر کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو کمرے کی طرف اندر سے کھینچا اور اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ نور تو اس حرکت سے بوکھلا گئی اور اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر دیکھا جو دلکشی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی میر؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال کر بولی، تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری یہ نیلی گہری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی پلکیں اپنی انگلی سے چھو کر کان میں سرگوشی کر گیا اور اس کے کان کی لو چوم لی۔ میر کے اس طرح کرنے سے نور کو جیسے کرنٹ لگا تو وہ اس پیچھے کرنے لگی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیے۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ اندر تک کانپ گئی۔ میر، وہ آہستہ سے بولی، وہ سب کھانے پر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ بس اس کے چہرے پر پھیلی لالی اور حیا سے اٹھتی گرتی پلکیں، وہ مبہوت سا رہ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ جب نور نے اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی اسے پیچھے دھکا دیا اور ہنستے ہوئے بلکونی کی طرف چل دی۔ دیکھیے میر، چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ اس کی بات بدلنے پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، مگر میرے چاند سے کم۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا، آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس کو نور نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر اترا۔ بس اب جلدی سے میری ہو جاؤ۔ اب انتظار ذرا مشکل لگتا ہے۔ اس کی بات پر وہ شرم سے سرخ چہرہ جھکا گئی جس میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لون میں چیئر پر بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا، شاید اپنے اندر ابھرتے اشتعال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سگریٹ کو پاؤں سے مسلتے وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکا کے آنکھیں بند کر گیا۔ ماضی کی ایک جھلک ذہن کے پردے پر آئی۔ زیب بھائی، چلے نا، دیکھیے کتنا اچھا موسم ہے۔ 16 سال کی نور 21 سال کی زیب سے کہہ رہی تھی، پرنس، میں کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ نوک کر کے آیا کرو۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے یونیورسٹی کا کوئی کام کر رہا تھا جب اچانک وہ جمپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھائی دیکھا، باہر بارش ہو رہی ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ چلے ٹیرس پر پلیز، وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بولی۔ پرنس، مجھے کام کرنا ہے، تم انجوائے کرو۔ وہ اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگا۔ نہیں، آپ چل رہے ہیں تو بس چل رہے ہیں۔ اس نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا، انداز دھونس جمانے والا تھا۔ میں کہا نا میں نے نہیں جانا، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اب کی بار وہ مصنوعی غصہ سے بولا، مگر نور کو اس کا لہجہ پسند نہ آیا۔ وہ برائی آنکھوں سے اس کو دیکھتی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اوف، وہ کیسے ناراض کر سکتا تھا اپنی پرنس کو؟ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا۔ پرنس، زیب نے اسے پکارا، آپ اب مجھ سے بات ہی نہ کریں۔ وہ ناراضگی سے بولی، اپنے دوست کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ چہرے پر معصومیت سجاتا بولا، نہیں بولوں گی اور نہ ہی بات کروں گی، سوچ لو پرنس۔
پھر جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں چاکلیٹ ہے وہ تجسس پھیلاتا جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے عین مطابق وہ بھی اس کے سامنے کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتا تھا چاکلیٹ کی تو وہ دیوانی۔ کہاں ہے چاکلیٹ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی بولی۔ میں کیوں بتاؤں، تم تو ناراض ہو نا مجھ سے؟ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔ نہیں ناراض، میری چاکلیٹ دیں۔ نہیں تم تو ناراض ہو نا، وہ میں حور اور نمرہ کو دے دوں گا۔ وہ غصہ سے گھورتی سائڈ ٹیبل تک آئی اور چاکلیٹ نکال کر جانے کے لیے مڑی، مگر پھر زیب کی طرف دیکھا۔ یہ چاکلیٹ بس میری ہے، آپ بس میرے لیے ہی لا سکتے ہیں، آئی سمجھ؟ انداز حق جتانے والا تھا۔ جی میڈم، وہ سر کو خم کرتا بولا۔ یہ لڑکی محبت تھی زیب لغاری کی، جو آہستہ آہستہ شدت پکڑتی جا رہی تھی، مگر سامنے موجود لڑکی اس سے بے خبر تھی۔ کسی کی آواز پر یادوں کا تسلسل ٹوٹا۔ زیب بھائی آ جائیے، ماما آپ کا کھانے پر ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جی تو حسن صاحب، ہماری بیگم کی خواہش کے مطابق نکاح کی رسم ایک دفعہ پھر سے ادا کی جانی ہے، تو بتائیے کون سی تاریخ رکھی جائے؟ نکاح کی عباس صاحب چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے بولے۔ ہمارے مطابق پرسوں جمعہ کی روز نکاح اور مائیوں کی رسم ادا کر دی جائے، اور پھر مہندی اور بارات۔ حسن شاہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولے۔ زیب کے موبائل پر چلتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ سر اٹھا کے اس نے میر کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے جیتنے کی خوشی ہو۔ درد کی ایک لہر دل میں اٹھی۔ تو کیا موت اتنی قریب ہے؟ دل میں سوچتا پھر سے موبائل میں متوجہ ہو گیا اور کمال ضبط سے خود کو سنبھال گیا۔ مگر بھائی صاحب اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہمیں نور کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ان کی پریشانی دور کر گئی۔ مگر پھر بھی ہم بیٹی والے ہیں، کچھ تو تیاری کرنی ہوگی۔ سب تیاریاں ہو جائیں گی، آپ بس منہ میٹھا کروائیے۔ جی جی ضرور بھائی صاحب۔ جاؤ نمرہ بیٹا، مٹھائی لے کر آؤ۔ جی مما۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں نور سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اوف آپی، آپ کا یہ شرمان نے مار ڈالا مجھے، وہ دل پر ہاتھ رکھتی بولی۔ شادی کی رات میر بھائی کی خیر نہیں، وہ اسے چھیڑتے بولی۔ نمرہ میں مما کو آواز دے دیتی۔ اوکے اوکے۔ وہ جلدی سے مٹھائی لے کر چلے گئی اور پیچھے وہ مسکراتی رہی، مگر کون جانتا تھا یہ مسکراہٹ صرف کچھ پل کی ہے۔ اب یہ کیوں کال کر رہی ہے؟ میر پریشانی سے اٹھ کر باہر لون میں آ گیا۔ کال ایک دفعہ پھر آنے لگی۔ ہیلو میر ڈارلنگ، کسی کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ جان کیوں بار بار کال کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے سب میر، تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لو پلیز بیبی۔ کون سے ایئرپورٹ سے؟ کہاں ہو تم؟ تانیہ، میں لاہور ایئرپورٹ پر کھڑی ہوں، باقی باتیں بعد میں کرنا، ابھی پلیز جلدی آؤ۔ شیان سو گیا ہے اور میں بھی بہت تھک گئی ہوں۔ تم اتنی رات کو کیا لینے آئی ہو؟ عقل ہے کہ نہیں؟ وہ غصے سے آہستہ آواز میں بولا۔ میر، وہ شیان آپ کو بہت یاد کر رہا تھا اور اسے ایک ہفتہ سے بخار بھی ہے، اس لیے آ گئی۔ وہ میر کو غصے میں دیکھ کر وضاحت دیتی بولی۔ تو جان تم مجھے کال کر کے بتاتی۔ میر بھی ایک دم ٹھنڈا ہوا۔ کیسا ہے اب میرا شیر؟ ٹھیک ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ اوکے تم ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ پیشانی مسلتا گاڑی میں بیٹھا اور چل دیا، اور ایک وجود کھل کے مسکرایا۔ زیب جو میر کے بلکہ سامنے بیٹھا تھا، اس کا بار بار کال کاٹنا اور چہرے پر موجود ڈر اور پریشانی کو وہ کب کا نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ زبردستی مسکراتا اٹھ کر باہر لون میں چلا گیا۔ جب زیب بھی اس کے پیچھے گیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جہاں سے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ زیب کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ کیا پرنس صرف میری ہوگی؟ اسے گاڑی لے جاتا دیکھ زیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہ وہی چیئر پر بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔
देखने में वो तकरीबन 22 साल की खूबसूरत लड़की थी। ब्लैक बाल जो स्टेप में कटे इसके कंधों से थोड़े नीचे तक आते थे और ब्राउन आंखें जो देखने वालों को अपनी तरफ ज़रूर मतवज्जा करती थी। इनमें मौजूद चमक जो ज़्यादा मीर को देखने पर आती थी। जीन्स और रेड शर्ट पहने खासी बोल्ड लगती थी। इससे आता देख वो इसके गले लगी। आई मिस यू बेबी, मैं तुम्हें बहुत याद किया। इसके गिर्द अपने बाजू का हसार बनाकर बोली। मिस यू टू जान। फिर मीर ने अपने बेटे का बोसा लिया। चलो बाकी बात बाद में करते हैं। वो इसका हाथ पकड़ता गाड़ी के करीब लाया। फिर आराम से शियान को पिछली सीट पर लेटा कर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और साथ इसके तानिया बैठ गई।